Good morning children, how are you all? I hope you all are fine at your home, right? और आप सबके यूनिट टेस्ट बहुत ही अच्छे गए होंगे ऐसा मैं सपोज करती हूँ, right? Okay, so children, we have today in your computer class we have already completed chapter 1, 2 and 3 and the third chapter's exercise was remaining, right? So in with this video we will do the exercise of third chapter and hereby we'll complete the semester 1 course of computer. Okay, I'll be sharing PDF file with you. ठीक है, टेक्स्ट बुक में ही, सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स फिलिंग इन द ब्लैंक्स जो भी एक्सरसाइज में दिया गया है वो करना है. ठीक है, जो क्वेश्चंस मैम ने रॉन्ग किए हैं या डिलीट किए वो आपको नहीं लिखने हैं. जिस क्वेश्चंस के मैम ने आंसर्स लिखे हैं सिर्फ वही आंसर्स आपको लिखने हैं. उसके अलावा read the chapter properly so that in exams if anything comes you don't have any problem. वैसे तो हम रिवीजन करेंगे ही तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट स्टिल आई वांट यू ऑल टू रीड. ओके, आप सब रीड करिए, पेरेंट्स को बिठाइए या बड़े दीदी भैया को अपने पास बिठाइए और 15 to 20 मिनट्स में, ये भी नहीं कहते कि बहुत लंबा बैठ के रीड करो, पर एटलीस्ट 15-20 मिनट्स सिट एंड रीड. Okay, I am not asking you to learn immediately, but first read. Okay, reading is very important. Okay, so let's start with the exercise of the chapter. It says, the first question says filling in the blanks with appropriate option. जैसे कि हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, appropriate options हमें दिए, we have to find out the right answer. Okay, yes. So the first question is, the shape of a keyboard is dash, round, rectangle or square. What is the shape of rectangle? Sorry, what is the shape of keyboard? I already said the answer, it is rectangle. Yes, so yes, I made this mistake so that you remember this answer. Okay, the shape of the keyboard is rectangle. So what is the spelling of rectangle? R-E-C-T-A-N-G-L-E, rectangle. Rectangle. What is the shape of keyboard? Rectangle. Not what is the shape of rectangle. Okay, what is the shape of keyboard? It is rectangle, right? I hope you will remember this blank now, always. Yes, mouse and dash are input devices. Now here three input devices are given in the, sorry, here devices are given in the bracket. Okay, now you have to find out with mouse which other option is the input device. आपको options दिए हुए हैं, ठीक है. माउस के साथ दूसरा कौन सा ऑप्शन है जो आपका इनपुट डिवाइस है, जिसकी हेल्प से हम डेटा को अंदर डालते हैं कंप्यूटर के. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मॉनिटर. इट इज इनपुट और आउटपुट डिवाइस. कौन सा डिवाइस है? इनपुट यानी हम डेटा अंदर डालते हैं, आउटपुट यानी हमें डेटा बाहर मिलता है. तो क्या हुआ है, मॉनिटर में डेटा अंदर जाता है या बाहर आता है? बाहर आता है. वेरी गुड. हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं और जो टाइप करते हैं वो कहाँ दिखता है? मॉनिटर स्क्रीन में. सो अगेन इट इज एन आउटपुट डिवाइस. Then printer. What is printer? Input or output device? Output device. Very good. How? कैसे है output device? हम कुछ कमांड कंप्यूटर में देते हैं. एक हमने क्वेश्चन पेपर डाला, क्वेश्चन पेपर हमने टाइप किया, उसके बाद में हमने वहाँ पे कमांड दिया प्रिंट, और फिर पूरा क्वेश्चन पेपर बाहर प्रिंट होके आता है. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमने जब माउस पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़े थे. उसमें आउटपुट डिवाइस में हमने प्रिंटर पढ़ा था, राइट? यस. सो अगेन दिस इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस. सो व्हाट इज लेफ्ट? कीबोर्ड. यस, सो कीबोर्ड इज व्हाट? इनपुट डिवाइस. आप जब डेटा टाइप करते हैं अल्फाबेटिक वे में या न्यूमेरिक वे में, तो आप डेटा अंदर डाल रहे हैं. दैट इज वाई माउस, आप कमांड दे रहे हैं. सो माउस इज ऑल्सो अगेन एन इनपुट डिवाइस एंड कीबोर्ड इज ऑल्सो अगेन एन इनपुट डिवाइस. ओके, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. ओके, नेक्स्ट ब्लैंक. द कीज ऑन अ कीबोर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश different sessions. 5, 6 or 7. How many sessions? 5 sessions. Very good. Then the blinking line on the screen is called dash.
Mouse, icon or cursor? What is it called? Cursor. Very good. What is the spelling of cursor? C-U-R-S-O-R. Cursor. Okay. Then there are dash function keys on a modern keyboard. How many function keys? 12 function keys. F1, F2, F3, F4 till F12. Okay. Then dash function key is used to get help of any program. कोई भी प्रोग्राम की हेल्प चाहिए तो कौन सी की प्रेस करेंगे? विच फंक्शन की? F1. ओके. रिफ्रेश करने के लिए F5. ठीक है. देन एंटर. Sorry, dash is the most important key on the keyboard. Enter, shift or space bar. Which is the most important key? Enter. What is the spelling of enter? E-N-T-E-R. Enter. Yes. Eighth blank. Dash key is useful for leaving blank space between two words. किसी चीज के बीच में दो वर्ड्स के बीच में स्पेस रखने के लिए कौन सा की काम आता है? स्पेस बार. वेरी गुड. हमारे आंसर क्वेश्चन में ही आंसर है तो स्पेस बोला है तो क्या आएगा बच्चों? स्पेस बार. ओके. दो लेटर्स के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में जब स्पेस डालना है तो स्पेस बार. सो स्पेस बार की इज यूजफुल फॉर लीविंग ब्लैंक स्पेसेस. Here the question में ये आंसर है. Blank spaces between two words. Okay. Next blank. Dash is the longest key on the keyboard. सबसे नीचे वाले लाइन पे horizontally कौन सा सबसे लंबा की है? Space bar. Again options are given. Enter, space bar, shift. अब इन तीनों में से कौन सा लंबा है? Space bar. Okay. Yes. Next blank. Dash key is useful for writing everything in capital letters. Enter, function और caps lock. कौन सा की यूज होता है बच्चों? बताओ. ये तो आप सबको पता ही है. जल्दी बताओ. इसमें भी क्वेश्चन में ही, ऑप्शन में ही आंसर है. कैप्स लॉक. यहाँ से आपको याद हो जाना चाहिए कि कैप्स लॉक इज यूज्ड फॉर कैपिटल लेटर्स. ओके. सो कैप्स लॉक की इज यूजफुल फॉर राइटिंग एवरीथिंग इन कैपिटल. ओके. Next blank. Holding the dash key and pressing any character prints it in capital letter. ठीक है. कोई एक पर्टिकुलर की, कौन सा की यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है? कैप्स लॉक, शिफ्ट, एंटर. अब मुझे पूरा वर्ड कैपिटल में नहीं लिखना है, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है. तो मैं वो की को प्रेस करूंगी और फिर वो दूसरा की जो लेटर लिखना है वो की प्रेस करूंगी. तो वो की कौन सा है जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा? तो देन द आंसर इज शिफ्ट की. कौन सा की? शिफ्ट की. जब भी आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है या सिर्फ एक ही लेटर कैपिटल लिखना है तो आप शिफ्ट की दबाएंगे, उसके साथ में ही वो लेटर का की दबा देंगे तो वो कैपिटल में आ जाएगा. बाकी के सब पीछे फिर स्मॉल लेटर में आएंगे. ठीक है. यस. सो द आंसर इज शिफ्ट की. The selected files or icons can be deleted and sent to dash. Recycle bin, keyboard, monitor. कहाँ भेजी जाती है deleted files? Recycle bin. What is the spelling of recycle bin? R-E-C-Y-C-L-E-B-I-N. Recycle bin. Okay. So children, first question we complete filling in the blanks. Second question is put right against the correct and wrong against the wrong statement. Right के आगे right, wrong statement के आगे wrong. First one, keyboard is an input device. Just अभी हमने blank में पढ़ा. Monitor, output device. Printer, output device. Keyboard, input device. So this statement is right. So we'll put here right. Okay. Space bar is in the first row of a keyboard. First row है या last row है? Last row. Very good. So this statement is right or wrong? Wrong. So we'll put here wrong. ठीक है. Enter key is not very useful. अभी just हमने blanks में पढ़ा. Which is the most important key? Shift, control या enter. तो then the answer is enter.
यहाँ पे दिया हुआ है नॉट वेरी यूजफुल, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रॉन्ग। ओके, देन देर आर, sorry, fourth one, there are no keys on a keyboard to move the cursor to the left and right side. हमने 4 स्पेशल कीज पढ़े थे, 4 मूवमेंट कीज पढ़े थे, राइट, कर्सर मूवमेंट कीज है ना, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, ऐसे कीज हैं कीबोर्ड में। जबकि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, there are no keys on a keyboard to move the cursor left and right. So this statement is right or wrong, children? Wrong. So we'll put here wrong. Okay, there are maximum 4 function keys on a modern keyboard. जबकि आंसर wrong है। How many function keys are there? 12. Very good. F1 to F12, F1, F2, F3 function keys जब भी आएगा बच्चों F1 to F12 आप याद रखेंगे, ठीक है। Next, backspace key is useful to delete a character on the left side of the cursor. This statement is right. ठीक है, backspace मतलब पीछे की साइड जाना, तो हम ऐसे आगे जाते हैं, ऐसे हम पीछे जाएंगे। This is my right hand side, this is my left hand side. So when I am putting backspace, so it is going on my left side. So this statement is right. Backspace key is useful to delete a character on the left side of the cursor, left side of the cursor, ठीक है, this statement is right. Caps lock key is on the left and right side of the space bar. Space bar सबसे नीचे होता है, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में कैप्स लॉक की, राइट और रॉन्ग। कीबोर्ड, जब भी हम कीबोर्ड के बारे में पढ़े, कीबोर्ड की इमेज आपकी आइज में आ जानी चाहिए, आपके इमेज ब्रेन में वो पूरा कीबोर्ड आ जाना चाहिए। तो वेयर इज द कैप्स लॉक की, सबसे ऊपर कैप्स लॉक, नम लॉक, फिर वहाँ पे एक होम फंक्शन होता है, फिर कैप्स लॉक के ऊपर भी लाइट है, नंबर्स लॉक के ऊपर भी लाइट है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वाई, सिर्फ एक ही साइड वो अवेलेबल है कैप्स लॉक की, ठीक है, और जो कि सबसे ऊपर है, ठीक है, और एक यहाँ आपके लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट के ऊपर होगी, ठीक है। शिफ्ट की इज यूजफुल टू टाइप कैरेक्टर लाइक परसेंट। यस, जब भी आपको कोई स्पेशल की प्रेस करना है तो आप स्पेशल की चाहिए, आपको स्पेशल लेटर चाहिए, तो आप कौन सा की प्रेस करेंगे, शिफ्ट की, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर लेटर को कैपिटल करना है तो भी हम कौन सा की प्रेस करेंगे, शिफ्ट। Yes, so shift key is useful to type characters like percentage, right? Okay, the arrangement of A, B, C, D alphabets on a keyboard and a typewriter is the same. क्या बोला गया है कि जो अल्फ़ाबेट्स कीबोर्ड में दिए गए हैं वो एज सेम एज टाइपराइटर में जैसे थे वैसे ही लिखे गए हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। जस्ट एक कॉपी पेस्ट, कॉपी की तरह है, पहले जैसे कीबोर्ड में सारे लेटर्स लिखे जाते थे वैसे ही, सॉरी टाइपराइटर में जैसे लिखे जाते थे वैसे ही लेटर्स को कीबोर्ड में लिखा गया है, ठीक है। एंटर की इज यूजफुल टू ब्रिंग द कर्सर ऑन अ न्यू लाइन। वेरी ट्रू, कर्सर एक लाइन में है, एंटर प्रेस किया वो दूसरी लाइन में आ जाएगा, है ना। गुड, सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। ओके, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे दिया हुआ है ए, ये आपका क्वेश्चन है, बी ऑप्शंस दिए हुए हैं, बीच में बॉक्सेस दिए हुए हैं, वहाँ पे आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, टू इरेज द कैरेक्टर ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। राइट साइड ऑफ द कर्सर में अगर कुछ डिलीट करना है तो वी विल यूज डिलीट की। बैक स्पेस होगा तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। टू लीव अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, क्या यूज होगा, शिफ्ट की, एरो की, बैक स्पेस की, डिलीट की, कैप्स लॉक की, स्पेस बार की, एंटर की। सो टू लीव अ ब्लैंक स्पेस, जब क्वेश्चन में दिया हो स्पेस तो आंसर आएगा स्पेस बार की, ओके। टू राइट टेक्स्ट इन कैपिटल, कैप्स लॉक की,
ठीक है। टू मूव द कर्सर इन 4 डायरेक्शन, तो एरो कीज, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एरो कीज, तो मूव इन 4 डायरेक्शन तो एरो कीज। टू ब्रिंग द कर्सर ऑन अ न्यू लाइन, टू ब्रिंग द कर्सर ऑन अ न्यू लाइन वी विल यूज एंटर की, जस्ट अभी हमने पढ़ा है ना। फिर टू इरेज कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, जस्ट अभी हमने ब्लैंक में कवर किया तो बैकस्पेस की, है ना। टू टाइप परसेंट कैरेक्टर, so only thing is left is shift key, so we will write here shift key. Okay children, yes, so we complete the math the following, and in question now we will do question number 4. Okay, what does question number 4 say? Who am I? Okay, the very first question in who am I is, I am useful to leave blank space between 2 words. Okay, it says I am useful to leave blank space between 2 words. So I am, जब क्वेश्चन में दिया हो स्पेस तो आंसर क्या आएगा, स्पेस बार. ओके, I delete the character on the left side. जब भी लेफ्ट साइड पे डिलीट होगा कैरेक्टर, then it is called as backspace. Okay, I bring the cursor on a new line. So answer is enter key. Okay. Then I write all the characters in capital letters. सब characters, यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है I write all the characters, not one character. Okay. All the character तो caps lock key. Okay. I complete certain tasks very fast. फंक्शन की, ठीक है, सब कीज सारे फंक्शन जो है वो बहुत फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ या शॉर्टकट से कर देता हूँ, देन इट इज फंक्शन की. आई कंप्लीट द कैरेक्टर ऑन दी राइट, आई डिलीट द कैरेक्टर ऑन दी राइट साइड, सो इट इज डिलीट की. ओके, I and a typewriter have the same arrangement of ABCD. तो टाइपराइटर की तरह ही मेरा अरेंजमेंट है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स का. तो वो किसके ऊपर है बच्चों, कीबोर्ड के ऊपर, राइट. नेक्स्ट, आई एम यूज टू मूव द कर्सर ऑन द लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, तो एरो कीज. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट द यूज ऑफ द फॉलोइंग कीज ऑफ द कीबोर्ड. कुछ कीज आपको दिए हुए हैं, उनके फंक्शंस या उनका यूज आपको लिखना है. क्या लिखना है, उनका यूज, ठीक है. एंटर की क्या होता है, कर्सर है उसको नेक्स्ट लाइन में लेके आना है, सो वी यूज एंटर की. यूजफुल टू ब्रिंग कर्सर ऑन न्यू लाइन. दूसरा क्या है, यूजफुल टू एग्जीक्यूट द कमांड गिवन ऑन अ कंप्यूटर. अभी प्रिंट दिया है, ठीक है, मुझे कोई शीट प्रिंट करनी है, उसमें क्वेश्चन मार्क आता है, शुड आई प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन मार्क, येस और नो. तो मैं कर्सर से यानी माउस से येस को सिलेक्ट करूंगी, कीबोर्ड पे एंटर की है उसको प्रेस करूंगी तो वो प्रिंट कर देगा. ओके, यस. नेक्स्ट is shift key. The shift key is useful whenever some characters are to be typed in capital letters. ठीक है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर कैपिटल में लिखना है तो कौन सा की यूज करूंगी, शिफ्ट की पहले प्रेस करूंगी, फिर वो लेटर को प्रेस करूंगी तो सिर्फ वही लेटर कैपिटल में आएगा. तो कैपिटल to shift key is useful whenever some characters are to be typed in capital letter or some special symbols are to be typed. जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में परसेंटेज का, ऐसा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर टाइप करना है या सिंबल टाइप करना है तब भी वो शिफ्ट की हमें काम आएगा. ठीक है. नंबर 3, डिलीट की. व्हाट इज द यूज ऑफ डिलीट की? The delete key is used to erase the character on the right side. जब भी लेफ्ट साइड होगा बच्चों बैकस्पेस, ठीक है, राइट साइड तो डिलीट की. ठीक है.
Erase the character on the right side of the vertical cursor. Vertical मतलब ऐसे जो कर्सर खड़ा है उसके सामने डिलीट की अगर हम प्रेस करते तो राइट हैंड साइड वाला जो ऑप्शन है या लेटर है या कैरेक्टर है वो डिलीट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट नंबर 4 इज स्पेस बार की. स्पेस बार की इज यूजफुल टू लीव ब्लैंक स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स. ठीक है, 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस करना है तो स्पेस बार की यूज होगा. देन कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की इज यूज टू राइट दी टेक्स्ट इन कैपिटल. ठीक है, सब कैरेक्टर्स, ऑल द कैरेक्टर्स आई विल बी राइटिंग इन कैपिटल, देन वी विल यूज विच की, कैप्स लॉक की. ओके, so here we complete our question number 5. Now question number 6. First question, what is a cursor? Blinking, BLINKING, blinking line on the screen. Blinking line on the screen is called as cursor. ठीक है, question number 2, 3 आप कैंसिल करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कैंसिल करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, फॉर व्हाट पर्पस आर द एरोज कीज यूज्ड? एरो कीज क्यों यूज किए जाते हैं, उनका पर्पस क्या है? द 4 एरो कीज आर यूज्ड टू मूव द कर्सर इन 4 डायरेक्शंस. 4 डायरेक्शन में कर्सर को मूव करना है तो एरो कीज यूज होंगे. कौन सी 4 डायरेक्शंस? लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन. ओके, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन. क्वेश्चन 6, 7 हम कैंसिल करेंगे. क्वेश्चन 7 भी कैंसिल करेंगे, सॉरी, यस, 6, 7 कैंसिल करेंगे. 8th क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 स्पेशल पर्पस कीज. स्पेशल कीज का जो पॉइंट है उसमें से कोई भी 5 लिखनी है. तो यहाँ पे मैम ने कौन कौन सी लिखी हैं? एंटर की, ENTER, एंटर की, स्पेस बार, SPACEBAR, स्पेस बार. देन डिलीट की, DELETE, डिलीट की. देन शिफ्ट की, SHIFT, शिफ्ट की. देन एरो कीज, ARROW, एरो कीज. ये सारी स्पेलिंग हमने हार्ड वर्ड्स में लिखी हैं तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 हियर वी फिनिश and thereby we complete our chapter with the exercise. Okay, so children, complete this work in your textbook. जो questions delete किए हैं वो आपको नहीं लिखने हैं. ठीक है, वो फ़िलहाल बहुत बड़े हैं आपके लिए तो आप उनको डिलीट कर दीजिएगा. जो मैम ने क्वेश्चंस लिखवाए हैं आप वही लिखिए. ठीक है, ये सारा वर्क आप अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा. क्वेश्चन चैप्टर 1, 2 और 3 आपके सेमेस्टर 1 में आएगा. ठीक है, इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे चैप्टर 1, 2 और 3 की, ताकि आप सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर हो जाएं. ठीक है, टिल देन चिल्ड्रन, स्टे होम, टेक केयर, डू द रीडिंग प्रैक्टिस एंड टेक केयर. गुड बाय.